یا پرائم منسٹر کو بلا لیں یا ملکہ ہی کو کیوں بلا لیں اس محفل میں، کیونکہ دنیا داروں کی محفل ہوگی. آج اب اس ذکر کی محفل میں اپنے گھر سے جیسے ہی نکلے آپ کو ہر قدم پہ نیکیاں مل رہی ہیں. ذکر کی محفل کے لیے، میلاد کی محفل کے لیے نکلے، ہر قدم پہ نیکیاں مل رہی ہیں، ہر قدم پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہر قدم پہ درجے بلند ہو رہے ہیں. لیکن کل اگر بڑے بڑے لوگ آ جائیں تو کیا آپ گھر سے نکلیں تو آپ کو نیکیاں ملیں گی؟ آپ گھر سے چلیں تو نیکیاں ملیں گی؟ نہیں. کوئی بڑا بادشاہ آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، کوئی مشیر آ جائے، آپ گھر سے چلیں آپ کو نیکیاں نہیں ملیں گی. جب محمد کا فقیر آئے گا گھر سے چلیں گے نیکیاں ملنا شروع ہو جائیں گے. محمد عربی کا فقیر آ جائے اور سرکار کا ذکر کرنے کے لیے آپ گھر سے چلیں تو آپ کو نیکیاں ملنا شروع ہو جائیں گی. اور صرف یہی نہیں، یہی گھر ہو، زیادہ لائٹنگ ہو اور ہم سے 2 گنا زیادہ بندے آ جائیں یا ہزاروں بندے آ جائیں، اس میں بڑے بڑے دنیا دار آئے ہوں تو ان کے اوپر آسمان کے ملائکہ رحمت کی چادر تانتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کریم کی رحمت کے انوار برستے ہیں؟ نہیں. یہ ذکر مصطفیٰ کی ایسی محفل ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اے کلمہ پڑھنے والے امتیوں یاد رکھو، جب تم ذکر مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہو، ذکر خدا کی محفل سجاتے ہو، جتنی دیر بیٹھے رہتے ہو اللہ کریم کے ملائکہ تمہارے اوپر رحمت کی چادر تان لیتے ہیں، اور جتنی دیر ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا کرتے رہتے ہو تمہارے اوپر اللہ کریم کی رحمت کو برساتے رہتے ہیں. اللہ کریم کی رحمت کو بولو نا، اللہ کریم کی رحمت کو ذرا بولو تو صحیح نا. اس وقت آپ کے اوپر اللہ کریم کی رحمت برس رہی ہے، اور خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ کے اوپر اللہ کریم کے انوار، اس کی رحمت کے انوار برس رہے ہیں. اس وقت سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اسی عقیدے کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اسی ذوق کے ساتھ حاجی ظفر صاحب نے اپنے گھر کو سجایا ہے. اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر، سرکار کے میلاد کا ذکر کرنے والا، کروانے والا، اس کی تو بڑی عظمت و شان ہے. بلکہ میں ایک اور بات ضمناً عرض کر دوں. حضرت آدم علیہ السلام آپ اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو ایک دن نصیحت فرما رہے تھے. اے شیس، تیری پیشانی میں نور چمک رہا ہے، تو جدھر جاتا ہے لوگ تیری عزت کرتے ہیں، تو جدھر جاتا ہے تجھے لوگ مرحبا مرحبا کہتے ہیں، تو جدھر جاتا ہے لوگ تجھے آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں. اس میں تو اپنی کوئی خوبی نہ سمجھنا، بلکہ تیری پیشانی میں محمد عربی کا نور چمک رہا ہے. وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا نبی ہے، امام الانبیاء ہے، وہ پیغمبر اعظم ہے. اس کے نور کی وجہ سے آج تجھے عزتیں مل رہی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فرمایا نا حاجی صاحب، تو شیس علیہ السلام عرض کرتے ہیں آپ مجھے یہ فرمائیں، کیا وہ بیٹا باپ سے زیادہ شان والا ہوگا؟ کیا وہ بیٹا باپ سے زیادہ عزت والا ہوگا، عظمت والا ہوگا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اے شیس، تو اس بیٹے کی بات کرتا ہے، تو اس نور والے کی بات کرتا ہے، تو اس کی بات کرتا ہے جس کی پیشانی میں، جس کا نور تیری پیشانی میں چمک رہا ہے.
उस नूर वाले की बात नहीं, उसका नाम लेने वालों की बात मैं तुझे सुनाता हूं। उस नूर वाले की बात नहीं, उसका कलिमा पढ़ने वाले की बात तुझे सुनाता हूं। उस नूर वाले की बात नहीं, उसकी जात पे दुरूद पढ़ने वाले की बात तुझे मैं सुनाता हूं। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ शीस याद रख, मैं आदम हूं, मैं अबुल बशर हूं, मुझसे एक खता सरजद हुई, मुझे जन्नत में से जमीन पे आना पड़ा, मुझे जमीन पे उतार दिया गया। लेकिन शीश याद रख, वो नूर वाला वो है कि जिसकी उम्मत मुझसे एक खता सरजद हुई तो जन्नत में से जमीन पे आना पड़ा, उसके उम्मती दिन रात गुनाह करेंगे, अल्लाह करीम फिर भी उन्हें जन्नत में भेज रहा होगा। उसके नाम लेवा दिन रात गुनाह करेंगे, अल्लाह करीम फिर भी जन्नत में भेज रहा होगा। और आप फरमाते हैं, याद रख ऐ शीस, मुझसे एक खता सरजद हुई, मेरी वो खता जो है उसका ढंढोरा पूरी कायनात में बज गया, हर एक को पता चल गया आदम ने गलती की है, इससे खता सरजद हुई है। लेकिन ऐ शीश याद रख, उसका कलिमा पढ़ने वाले, उसका नाम लेने वाले दिन को भी गुनाह करेंगे, रात को भी गुनाह करेंगे, हाथों से वो गुनाह करेंगे, आंखों से वो गुनाह करेंगे, कानों से वो गुनाह करेंगे, जुबान से वो गुनाह करेंगे, पांव से वो गुनाह करेंगे, वो गुनाहों में डूबे रहेंगे। लेकिन रब्बे कायनात फिर भी उनके ऊपर पर्दा डालेगा, फिर भी उनके ऊपर। ये उसका नाम लेने वालों की शान है। तू तो उसकी बात करता है, मैं उसका नाम लेने वालों की बात बताता हूं। और फिर आप फरमाते हैं, ये भी याद रख, ये भी याद रख, मुझसे खता सरजद हुई तो मुझे अपने घर में से निकलना पड़ा, मक्का तक पहुंचना पड़ा, मैदान अरफात तक जाना पड़ा। लेकिन उसका नाम लेने वाले जो हैं, और फिर आप फरमाते हैं, ये भी याद रख, मुझसे खता सरजद हुई तो मुझे सिर्फ मक्का तक जाना नहीं पड़ा, बल्कि 300 साल तक रोता रहा, इससे भी ज्यादा देर रोता रहा, कुरलाता रहा, तौबा व इस्तगफार करता रहा, लेकिन मेरी ना सुनी गई। और जब तक उस नूर वाले का वसीला ना लिया कि मौला अब तेरी बारगाह में वास्ता उसका डालता हूं जिसका जन्नत के पत्ते पत्ते पर तेरे नाम के साथ नाम लिखा है, जिसका जन्नत के दरवाजे दरवाजे पर तेरे नाम के साथ नाम लिखा है, जिसका अर्श के हर किंगरे पर तेरे नाम के साथ नाम लिखा है, ऐ मौला उस मोहम्मद अरबी का वसीला डालता हूं, मेरी दुआ कबूल फरमा ले। तो ऐ शीश याद रख, तेरे बाप की दुआ भी उसके नाम से कबूल हुई, उसका वसीला लेने से कबूल हुई। और उसके उम्मतियों की शान ये है कि वो जैसे ही दुनिया में आएगा, इस दुनिया में आते ही सर सजदे में रख के रब्बे हबली उम्मती उम्मती की सदा लगाएगा। और मुझे तो मक्का और इरफात तक पहुंचना पड़ा, उसकी उम्मतियों की ये शान होगी, वो गुनाह करेंगे, वो गुनाहों में डूबे होंगे, लेकिन अपने ही घर में जब सच्चे दिल के साथ सजदा रेजी करने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएंगे, वो रब्बे कायनात उनको ये नहीं कहेगा कि घर से निकलो, ये नहीं कि 300 साल तक रोते रहो, नहीं, दिल पाक और साफ होना चाहिए। सजदा करने के बाद जैसे ही हाथ उठाएंगे, अल्लाह करीम उनकी तौबा कबूल फरमा लेगा। ये उसका नाम लेने वालों की शान है, ये उसका नाम लेने वालों की शान है। और फिर ऐ शीश याद रख, वो तो वो हस्ती है, क़यामत के दिन मैं अबुल बशर आदम, लोग मेरे पास आएंगे, मैं कहूंगा आगे जाओ, लोग
नूह के पास जाएंगे कहेंगे आगे जाओ, लोग जकरिया के पास जाएंगे कहेंगे आगे जाओ, याकूब के पास जाएंगे कहेंगे आगे जाओ, यूसुफ के पास जाएंगे कहेंगे आगे जाओ, यूनुस के पास जाएंगे कहेंगे आगे जाओ, मूसा के पास जाएंगे कहेंगे आगे जाओ, ईसा के पास जाएंगे कहेंगे आगे जाओ। वही उम्मत का वाली है, वही मोहम्मद अरबी है, जैसे ही उनके पास पहुंचेंगे कहेंगे आना लहा, आओ मैं हूं तुम्हारे लिए, 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 मैं हूं तुम्हारे लिए। और ऐशीस, ये नूर जो तेरी पेशानी में चमक रहा है, इसका बड़ा ख्याल रखना, इसकी इज्जत और तौकीर का बड़ा ख्याल रखना। आज जो लोग तुझे आंखों पे बैठाते हैं, इसी नूर की बरकत है, इसी की अजमत है, इसी की शान है। और हजरात गिरामी, मुझे 10 बजे टीवी पे प्रोग्राम पे भी पहुंचना था, लेकिन शायद थोड़ा लेट हो जाऊंगा। मैं टेक्स्ट वैसे मैंने कर दिया उनको कि मैं लेट पहुंचूंगा, लेकिन हाजी ज़फ़र इकबाल साहब ने बड़ी मोहब्बत के साथ बुलाया है, और ये हमारे बड़े ताबेदार भाई हैं, साथी हैं, बड़े बहुत ही ताबेदार हैं। तो इनकी मोहब्बत और फिर ज़िक्र कमली वाले आका का, ज़िक्र कमली वाले आका का, तो इसके लिए थोड़ी देर बैठना और टाइम निकालना। ये टीवी के प्रोग्राम तो चलते ही रहते हैं, मैं नहीं हूँ फिर भी इंशाल्लाह चलता रहेगा, लेकिन यहाँ जिक्र करना मैं समझता हूँ आज शायद सरकार का जिक्र कर लें, क़यामत के दिन हमारी निजात का सबब बन जाए इंशाअल्लाह ताला। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद का जिक्र, लेकिन आपका इम्तिहान लेना भी मकसूद नहीं है, क्योंकि रात के 9 बज रहे हैं और आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, और मुझे पता है कि लोग बुज़ुर्ग भी हैं, शुगर का भी मसला होता है, और सारे मसाइल हैं, ये साथ साथ होते हैं। तो सरकार के मिलाद का जिक्र थोड़ी देर करके तो फिर इंशाअल्लाह ताला दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। आपने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का जिक्र 12 मरतबा सुना, और आपने ये भी सुना होगा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दाइयां लेने के लिए आई, और जब देखती कि इसका बाप सर पे नहीं है, वो छोड़ के चली जाती, वो छोड़ के वो कहती कि हमें हक़ुल खिदमत देने वाला कोई नहीं है। हालांकि हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है कि अगर उनको हक़ुल खिदमत का फिक्र होता तो आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरदार मक्का में से थे, सरदारान मक्का में से थे, और किसी चीज की कमी ना थी। हाँ, एक चीज की कमी थी कि उनके नसीब सड़े हुए थे, उनके नसीब में ये कायनात का जौहर था ही नहीं। और जब वो यतीम कह के जाती थी, तो जरा आप एक बात सोचें, ऐसी माँ जिसका खामंद ना हो, और ऐसी औरत जिसका खामंद सर पे मौजूद ना हो, और अल्लाह करीम उसको चांद से हसी बेटा अता फरमाए, और वो बेटा जब बतन में आए तो पत्थर के ऊपर पांव आए तो वो मोम हो जाए, पानी पीने के लिए कुएं के पास जाएं तो पानी निकालना ना पड़े, पानी ऊपर आ जाए, आप धूप में निकलें तो बादल साया कर लें, जानवरों के पास से गुजरें तो वो भी मरहबा मरहबा और खुशामदेद कहें। ऐसा बेटा जब रब्बे कायनात अता फरमाए, और लोग और वो दाइयां ये कह दें कि ये यतीम है, उस माँ का दिल टूट के करची करची हो जाता होगा, और वो दिल ही दिल में ये सोचती होगी कि काश आज अगर अब्दुल्ला होते, इसे यतीम कह के कोई न जाती, आज अगर अब्दुल्ला होते